Hello. हाँ. Hello. Good morning. So hello, my voice is clear. Hello, my voice is clear. Okay, Mubashra. So good morning. My voice is hope to all of you is clear. So today we have a topic of subject of nursing seminar, and we'll talk about nursing status and image. So wait for while the uploading the lectures. Good morning. Good morning to all. Please wait for uploading these slides. Sometime network it take a time to upload the lecture, so please wait for a while. So good morning, very good morning to all of you. We'll talk about nursing status and image. Maybe you are get familiar with the nursing status, and maybe you have a awareness about the status and image about today and in past and in the future. What is the nursing status and image internationally and nationally about the nurses, that how they behave, how what role they need to adapt, what was the possibility, how to show your visibility to the publicly, so that people will consider that nurses are very educated and having a degree and knowledge to practice nursing professions. So we'll talk about a lot about this nursing status and nursing image की बात करें. Even I have a plan to give you assignment, but I already have a topic, prepared topic, but let me share with you a little about it. But you need to prepare the different point of view. I'll share with you, I will give you assignment about this nursing status and image, and after that you have an idea how to prepare this topic for the nursing status and image, because this is the first unit of nursing seminar content. So in this, we will learn about introductions to a nursing status and image के में जो है हम क्या सीखेंगे objective. At the end of this presentation, the learner will be able to introduce to nursing image. They will be able to introduce nursing image, describe the visibility of nursing, factor that affect visibility of nursing, यानी कि
देखिए कौन से ऐसे फैक्टर जो नर्सिंग की विजिबिलिटी पे जो है अफेक्ट करते हैं। जनरेशनल इश्यूज भी हो सकते हैं इन नर्सिंग इम्पैक्ट ऑन इमेज, जो कि उसके इम्पैक्ट पर असरअंदाज होते हैं। फैक्टर दैट इम्प्रूव नर्सिंग इमेज, कौन से हमें फैक्टर्स नीड टू इम्प्रूव, ठीक है, टू नर्सिंग इमेज को, कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिससे हम नर्सिंग के इमेज को इम्प्रूव कर सकते हैं। प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन भी मैटर करती है इन द स्टेटस एंड इमेज ऑफ द नर्सिंग। इंक्रीज विजिबिलिटी एंड प्रोफेशनल ग्रोथ एंड ट्रेड ऑफ अ गुड नर्स, क्या होने चाहिए ट्रेड गुड नर्स के। नेगेटिव इमेज ऑफ प्रोफेशनल नर्सिंग, नेगेटिव इमेज क्या था इन द पास्ट, और अगर हम देखें तो प्रेजेंटली भी देखा जा सकता है कि पास्ट में के पॉइंट ऑफ व्यू में भी था, प्रेजेंट में भी है। होप वी विल इम्प्रूव इन द फ्यूचर। सो एक्सप्लेन हाउ एडवर्टाइजिंग एंड मीडिया इम्पैक्ट द नर्सिंग इमेज, कि जो है मीडिया जो है वो नर्सिंग को कैसे पोर्ट्रेट करता है, किस तरीके से प्रेजेंट करता है। और हम में से सभी फेमिलियर हैं कि मीडिया जो है हमेशा नर्स का एक जो है वो बहुत बुरा इम्पैक्ट डालता है। लाइक दे बिलोंग्स टू वेरी पुअर फैमिलीज एंड नॉट अफोर्डिंग एंड दैट्स वाई, और ये दे आर सर्वेंट हैंडमीडियंस ऑफ द डॉक्टर्स। ये सारा जो है इम्पैक्ट है पब्लिकली, और मे बी द पीपल डोंट हैव द नॉलेज दैट व्हाट टाइप ऑफ नर्सिंग having educations and degree to practice nursing professions. So how to the matter is this, how we can improve and bring the good understanding in the publicly to behave through our behavior, through our presentations, through our knowledge, competency, and dealing to the publicly, that will help to improve our status, advertising our status in front of in the media. if अगर नर्स का एक पॉजिटिव इमेज जो है वो मीडिया के थ्रू जाएगा तो दैट विल चेंज द पब्लिक पॉइंट ऑफ व्यू। सो पब्लिक व्यू अबाउट नर्सिंग क्या है, व्हाई वी इम्प्रूविंग नर्सिंग इमेज, और हमें इमेज को क्या है इम्प्रूव करने की क्यों जरूरत है। जी समझ आ गया इसका कि क्या क्या हम सीखेंगे। So today we'll talk about nurse. Everybody knows nurse क्या है और nursing क्या है। Maybe please anyone can type nursing क्या है और nurse क्या है। Can you show me your response, please? Yes, Surya and Samar, Arfa, Seher Kamal, Shanza, please show me your response. Do you know about that? What is the exact meaning of the nurse? What is nurse? Nurse क्या है और nursing में क्या फर्क है? Please anyone can type. Hurry up. Okay, jaldi, hurry up and type it. Show me your response. At least I come to know that how much you know about the. At least this is the very simple, and you are holding the title of nurse, so you must need to understand, and you must be able to explain that what is nurse and what is nursing. Care Sabha Tahir, care of the need of the patients. Okay, so what else is nurse? नरिश मदरिंग, ठीक है। सो क्या करती है नर्स के अगर इंडिविजुअल निमोनिक्स पे बात करें तो देयर इज सो मेनी थिंग्स दैट इवॉल्व फ्रॉम द नर्स दैट एंड फॉर नरिशिंग, ठीक है। सो आप इनको अगर निमोनिक्स इसके देखेंगे तो आपको और अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो सकती। प्रोवाइड टू केयर, मैम नर्स इज द हेल्थ केयर प्रोवाइडर who provide care to the patient. Okay, Sarish a healthcare provider who work for the welfare of the sick and provide the care to them. Right, you have at least little bit opinion about the nurse, that who is she. So nursing क्या है, आपने nurse के बारे में तो बता दिया. We will talk about the nursing. Nursing क्या है? The unique pattern of functions of the nurse is the unique function of the nurse is to assist the individual sick or well. क्या उसका रोल है, उसका यूनिक फंक्शन क्या है? नर्स किसको इंडिविजुअल को सिक कर क्या असिस्ट करती है? कौन से इंडिविजुअल को सिक और वेल, वो सिक हो या फिर वेल हो, अच्छे हो या बीमार हो, इन द परफॉर्मेंस ऑफ दोज एक्टिविटीज कंट्रीब्यूटिंग टू हेल्थ और इट्स रिकवरी और टू पीसफुल डेथ, ठीक है। वो ऐसी एक्टिविटीज परफॉर्म करती है, हेल्थ की ऐसी एक्टिविटी परफॉर्म करती है जो कि उनको रिकवरी प्रोवाइड करती फ्रॉम पीसफुल डेथ, फ्रॉम हेल्थ टू
पीसफुल डेथ, कि उनकी डेथ तक जो है कि एट द एंड ऑफ द डेथ इवन नर्स हैज अ सर्टेन रोल टू परफॉर्म ऑन द डेथ टाइम। सो वो उसमें सपोर्ट करती है पेशेंट्स के लिए, उनको इनकरेज करती है, स्ट्रेंथन देती है, ठीक है, उसका वहाँ पे भी रोल होता है। और इसकी साइकोमोटर अगर इसकी स्किल भी देखो तो एवरी एंगल से नर्स का जो है, जब डेड पेशेंट की डेथ हो जाती है तो आपको पता है कि नर्स का क्या काम होता है, उसको प्रॉपर बॉडी को रैप करना, उनके अटेंडर्स के हाथ जो है प्रॉपर उसकी इक्विपमेंट को जो है वो प्रॉपर तरीके से हैंड ओवर करती है, ठीक है, फैमिली को तसल्ली देती है, और बहुत सारे जो उसके रोल होते हैं जो पीसफुल डेथ तक जो है पेशेंट के साथ होती है। और जब तक कि उनकी डेड बॉडी उनके हैंड ओवर नहीं की जाती, नर्स इज ऑलवेज परफॉर्मिंग एंड स्टेइंग विद द पेशेंट, परफॉर्मिंग हिज रोल एंड एक्टिविटी विद फॉर द पेशेंट एंड इवन टू सपोर्टिंग इज देयर जो पेरेंट्स हैं या गार्डियंस हैं, जो भी उनके रिलेटिव्स हैं, उनको क्या करती है, सपोर्ट भी करती है, सो दैट ही वुड परफॉर्म। इसलिए नर्स का जो रोल होता है हॉलिस्टिक होता है। आपने देखा कौन कौन सा हॉलिस्टिक का मतलब क्या होता है, स्पिरिचुअल, फिजिकल, ठीक है। सो कितने होते हैं, 6, इसके 6 डोमेन्स होते हैं, ठीक है। तो 6 डोमेन के अंदर जो जो हम कहते हैं इसको होलिस्टिक केयर कहते हैं। नर्स इज फ्रॉम द बर्थ टू टिल दैट परफॉर्मिंग इज जो है होलिस्टिक केयर प्रोवाइड करती है, दैट ही वुड परफॉर्म अनएडेड aided if he had the necessary strength, will and knowledge। यानी कि नर्स जो है वो विदाउट हेल्प एंड असिस्टेंस केयर प्रोवाइड कर सकती है, उसको एक्टिविटी परफॉर्म कर सकती है अगर उसके पास क्या होगा, नेसेसरी नॉलेज, स्ट्रेंथ एंड स्किल होगी, ठीक है। अगर उसके पास नॉलेज होगा, उसके पास स्ट्रेंथ होगी, स्ट्रेंथ का मतलब है कि शी मस्ट, स्ट्रेंथ का मतलब है कि नॉलेज तो है, नॉलेज स्ट्रेंथ, नॉलेज भी इसमें कंसीडर होगा, और उसकी ऑटोनॉमी भी होगी, उसकी प्रोफेशनल जो एक्टिविटीज़ भी इसमें आ जाएंगी कि वो किस तरीके से विदाउट द हेल्प ऑफ अदर्स शी कैन जो है प्रोवाइड द टोटल केयर टू द पेशेंट। हमने नर्सिंग को बड़े डिटेल में डिस्कस किया है। सो स्टेटस क्या चीज़, हमने नर्सिंग तो पढ़ी है, क्योंकि हम नर्सिंग की बात करें, स्टेटस की और इमेज की बात करें तो पहले हमें नर्सिंग टर्म को अंडरस्टैंड करना है, then after that we need to understand the status क्या होता है। The status is positions of an individual in relations to another's or others, especially in regard to social और professional standing। ठीक है, स्टेटस क्या होता है, किसी भी शख्स की पोजीशंस होती है, रैंक होता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल माय पोजीशन इज एज अ टीचर, योर पोजीशन इज एज अ स्टूडेंट, एज अ प्रोफेशनल, एज अ पर्सनल, एज अ सोसाइटल, ठीक है। इसलिए क्या है, अनदर और अदर और स्पेशली इन रिगार्ड टू सोशल और प्रोफेशनल स्टैंडिंग। जिस एरिया में हम स्टैंड करते हैं, वी आर होल्डिंग अ स्टेटस, एंड हमारा एक ओहदा होता है, स्टेटस होता है, पोजीशंस होती हैं जिसमें हम जो है फॉल करते हैं। समझ आ गया, क्लियर हो गया? ओके, सो मूव फॉरवर्ड। इमेज क्या चीज होती है, इमेज क्या, एक मेंटल पिक्चर्स होती है। An image is a mental pictures of a person's, animal, or any object summoned up by a word or phrase or sentence। यानी कि ये एक मेंटल पिक्चर होती है अबाउट अ पर्सन्स, एनिमल और ऑब्जेक्ट के बारे में जो है हमारी जो क्या होती है, जो कि हम बाय फ्रेज, वर्ड, फ्रेज और सेंटेंस से, यानी कि एक पावर ऑफ वर्ड होती है जो कि हम क्या करते हैं दूसरे के बारे में पेश करते हैं, दैट इज आर मेंटल पिक्चर्स होती है। इट इज द वे अ पर्सन अपीयर टू अदर, ये एक ऐसा वे है जिस जो हम दूसरे पर्सन पे जाहिर करते हैं, विजिबल करते हैं। इन केस ऑफ प्रोफेशंस, अगर हम प्रोफेशंस की बात करें, द वे दैट प्रोफेशन अपीयर टू द अदर डिसिप्लिन एंड टू द जनरल पब्लिक कंज्यूमर ऑफ हेल्थ। यानी कि इमेज वो चीज है, ओके, सो इमेज वो चीज है जो हम दूसरे पर शो करते हैं, दूसरे को जो है अपना जो है बाय सेइंग वर्ड, फ्रेज और सेंटेंस से जो हम दूसरे के बारे में जो है जाहिर करते हैं या शो करते हैं या एक्सप्लेन करते हैं या एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। तो इमेज वो चीज़ होती है। लेकिन क्या हम दूसरों पर उसको एज ए प्रोफेशनल, अगर इन केस प्रोफेशन की बात करें, द वे दैट प्रोफेशनल अपीयर टू अदर डिसिप्लिन, जैसे हम दूसरों के साथ पब्लिकली हमारा क्या एज ए हेल्थ केयर प्रोफेशनल व्हाट वी आर बिहेविंग, दैट पीपल आर अंडरस्टैंडिंग,
कि हाउ वी आर बिहेविंग, दैट इज आवर इमेज, ठीक है। जो हम कैसे किसी से बात करते हैं, कैसे किसी से कम्युनिकेट करते हैं, हाउ वी रिस्पेक्ट सीनियर, हाउ वी रिस्पेक्ट जूनियर, हाउ वी रिस्पेक्ट बिहेव विद फेलोज, सो दिस इज आवर इमेज। कि हम जो कुछ बोलते हैं, जो कुछ एक्टिविटीज को करते हैं, या जो कुछ भी हम एक्सप्रेस करते हैं, दैट इज आवर इमेज। लोग हमें उस तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं, हमारा वे वी आर कम्युनिकेटिंग, द वे वी आर एक्सप्रेसिंग द थॉट एंड ओपिनियन, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट इमेज। हो गया क्लियर? So, visibility of nursing. Okay, thank you so much. So, visibility of nursing क्या है? Visibility को हम क्या कहते हैं? Visibility का मतलब था show करना, visibility of nursing यानी कि appearance of nursing, ठीक है। So, the public views of nursing and nurses are typically based on personal experience with the nurses. अगर हम पब्लिकली देखें, नर्सिंग का जो व्यू है और नर्सिंग का या नर्सिस का टिपिकली किस बेस पे होता है? पर्सनल एक्सपीरियंस विद द नर्सिस। जो उनका पर्सनल एक्सपीरियंस होता है, दैट लीड टू द होल कंसेप्ट एज अ नर्स, ठीक है। सो विच कैन लीड टू अ नैरो व्यू ऑफ अ नर्स अबाउट ऑफन बेस्ड ओनली अ ब्रीफ पर्सनल एक्सपीरियंस। जो कि जैसे किसी पेशेंट का इनकाउंटर होता है एक नर्स के साथ, मे बी इन दैट टाइम नर्स इज नॉट इन अ गुड मूड, मे बी she cannot able to understand the, sometime we are even at the personal professional life we are sometimes misunderstanding each others, and उसके साथ जो सिचुएशन एक वक्त में काउंटर हो जाती है, एक वक्त में एक सिचुएशन प्रॉब्लम तो कहीं भी हो सकता है, बिकॉज life is every time we are learning a lesson from the life, or every event give you experience and lesson, ठीक है। तो हम कभी कोई इश्यू हो जाता है तो हम उस इश्यू को लेकर पूरी जिंदगी तक जो हमारे जो एक मेंटल पिक्चर बन जाती है, जो हमारा इमेज क्रिएट हो जाता है, वी आर थिंकिंग अबाउट दैट नर्स इज लाइक दैट, ठीक है। तो वो एक नैरो कॉन्सेप्ट बन जाता है, यानी कि वो एक छोटी सी बात पे हमने किसी चीज को होल जज कर लिया, ठीक है, कि हम उस पर बात करते हो कि नर्सेज आर लाइक, मे बी समटाइम they can encounter with the problem, but it is not matter that all the nurses is the same. This experience may not provide an accurate picture of all that nurses. ये जो पिक्चर है, ये जो थॉट है, ये जो जो कह सकते हैं कि ये जो माइंड सेट है, ये इट इज नॉट क्लियर और एक्यूरेट नहीं है। क्यों? क्योंकि ये इट मे बी हम एक कहेंगे, फॉर एग्जांपल कहते हैं कि नर्सेज जो है उनके पास जो उनके पास डिग्री नहीं होती है, उनके पास नॉलेज नहीं होता है, या फॉर एग्जांपल नर्सेज वो होते हैं जो सिर्फ यूनिफॉर्म पहन लेते हैं और वो नर्सेज बन जाती हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है, बिकॉज नर्सेज है, क्योंकि जब वो काउंटर पे आते हैं तो डिफरेंट स्टाफ होते हैं जो कि सेम यूनिफॉर्म में होते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि ये नर्स है, बिकॉज बट दे डोंट नो अबाउट द एक्चुअल क्वालिफिकेशन ऑफ द नर्स। वो नर्स की क्वालिफिकेशन को नहीं समझते, उसकी प्रैक्टिस, उसकी ड्यूटी को नहीं समझते, ठीक है, रोल को अंडरस्टैंड नहीं करते, इसलिए उनके पास जो होता है वो नैरो पॉइंट ऑफ व्यू होता है, इसलिए दैट जो है विजिबिलिटी जो है नर्स की वो अफेक्ट होती है। हमने विजिबिलिटी की बात की है कि द पब्लिक व्यू जो है नर्सिस के पर्सनल एक्सपीरियंस पर बेस करते हैं, जो कि एक नैरो जो है, अगर कोई एक पर्सन जो है किसी का जो कोई सिचुएशन इनकाउंटर हो जाती है तो वो पर्सनल एक्सपीरियंस की बेस पर जो है नर्सिस को, ऑल नर्सिस को जज करते हैं, ठीक है, या उनके बारे में एक्यूरेट उनका जो इमेज होता है अबाउट द नर्सिस मे बी अ नेगेटिव और मे बी अ नैरो। ओके Iman. So we will continue to talk about the visibility of nursing. These views influenced by the emotional response of a person to the situations and the encounter with the nurse. ये जो उस पर्सन का एक इमोशनल रिस्पॉन्स हो सकता है टुवर्ड द सिचुएशंस, उस पर्सन की इमोशनल रिस्पॉन्स होता है दैट इनकाउंटर विद द नर्स, जो नर्स के साथ उसको इनकाउंटर होता है। बट the truth is that the most often nurses is invisible. क्योंकि बिकॉज इनविजिबल, उनका रोल इनविजिबल होता है, उनकी जो एजुकेशन है वो उनको वो प्रॉपरली जानते नहीं उसके बारे में कि हाउ नर्सिंग इज अ हार्ड प्रोफेशन, ठीक है, कि हाउ दे आर वर्किंग इन वैरायटी ऑफ रोल, उनके बहुत वैरायटी ऑफ रोल होते हैं, नॉट ओनली वन रोल इन विच यू आर इनकाउंटर्ड इन सिचुएशंस,
When a person tell another that he or she is nurse, the typical response is positive. अगर हाँ आप किसी को कहते हैं कि वो नर्स है तो हाँ एक रिस्पॉन्स अच्छा ठीक है, एक पॉजिटिव हो सकता है कि हाँ ये इसलिए अच्छा पॉजिटिव है क्योंकि दे आर गुड एंड मे बी दे आर सर्विंग एज टू द सिक एंड वेल पेशेंट्स, ये डील करते हैं, इनका ये काम होता है और ये डॉक्टर्स के ऑर्डर को फॉलो करते हैं। मे बी उनका थोड़ा पॉजिटिव ये पॉइंट भी हो सकता है, लिटिल टेल थोड़ा बताते हैं, यानी कि उनको प्रॉपर पता नहीं होता। पॉजिटिव कह सकते हैं, पॉजिटिव इन अ सेंस कि हाँ दे आर गुड, दे आर प्रोवाइडिंग द केयर टू द सिक पेशेंट, ठीक है। सो इन दैट सेंस दे कैन टॉक अबाउट दैट दिस इज द पॉजिटिव रोल ऑफ द नर्स. So consumer may not recognize that they are interacting with the nurse. When patient goes to their doctor office, they interact with the staff, and often these patients think that they are interacting with the registered nurse. Most likely they are not, and the staff persons may be a medical assistant and other care professional. जैसे मैंने पहले भी बात की है कि जब कोई भी कंज्यूमर जो है जो सीकिंग फॉर केयर एंड जो सर्विसेज को अवेल करता है और उसको पता ही नहीं होता, नॉट रिकॉग्नाइजिंग दैट द इंटरेक्टिंग विद द नर्स, उसको ये पता ही नहीं होता कि वो नर्स के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, क्योंकि उसको तो बहुत सारे वहाँ स्टाफ नजर आ रहे होते मेडिकल, वो उन सबको वो क्या समझता है स्टाफ ही समझता, हो सकता है कोई लोअर रैंक के स्टाफ भी अमला भी आपके साथ होता है, नर्स असिस्टेंट होते हैं, कोई और हेल्थ केयर प्रोफेशनल होते हैं, दे आर कंसिडरिंग दैट ऑल दैट नर्स में दे डोंट नो द considering and having the recognitions with the nurse role के nurse का actual unit, और sometimes this is our fault as well because we are not appearing, हमने अपनी appearance को जो है वो as a professional very less represent करते हैं। आपने देखा है कि आर्मी की नर्स देख लें तो आपने देखा कि उनके यूनिफॉर्म इट शोज देयर autonomy to work as a nurse professional, ठीक है। उनके जो यूनिफॉर्म जो है इट सिर्फ रिप्रेजेंट द नर्स के वो नर्स है। अगर आप इंटरनेशनली लेवल की बात करो तो यू विल सी द सेम यूनिफॉर्मिटी, उनकी यूनिफॉर्म में बड़ा है उनका वे टू वॉक, वे टू मूव, टू टॉक, ठीक है। सो इट शोज दैट द नर्स हैज अ कॉम्पिटेंट एंड एजुकेशनल प्रोफेशनल, ठीक है। लेकिन अगर हमारे यूनिफॉर्म में हमने जूता कुछ और आम ही लोगों जैसा पहना हुआ है, हमारे बाल ऐसे ही बने हुए हैं, तो कोई क्या पता चलेगा कि यू आर रियली गुड नर्स। आप अपनी प्रेजेंटेशन से अपने आप को पब्लिकली जो है वो विजिबल करा शो कर सकते हैं कि हाउ नर्सेज आर वर्किंग एंड हाउ दे आर थ्रू योर बिहेवियर एज वेल यू कैन प्रोड्यूस द गुड इमेज ऑफ नर्स। सो देयर हम आगे भी बात करेंगे कि कैसे, फॉर एग्जाम्पल कुछ नर्सेज हमने देखा है कि यूनिफॉर्म उन्होंने पहना होता और बाहर ऐसे घूम रहे होते, तो वो समझते हैं कि जो किसी को भी देखेंगे वो कहेंगे ये भी नर्स है। तो डिपेंड करता है कि आप अपनी यूनिफॉर्म की वर्थ जो है उसका बहुत ख्याल रखें। हमेशा आपका जो है यूनिफॉर्म जो होता है एक इंसान की आइडेंटिटी होती है, उसकी प्रोफेशनल आइडेंटिटी होती है। सो प्लीज डोंट waste and lost his identity, so do not give them the chance to talk about the nursing image and status, ताकि वो उसको मिस इंटरप्रेट ना करें, ताकि आपका जो है प्रोफेशनल ऑटोनॉमी जो है आपके अंदर हो, असर्टिवनेस हो आपके अंदर होनी चाहिए, प्रोफेशनल ऑटोनॉमी होनी चाहिए और आपके साथ कॉम्पिटेंसी और नॉलेज भी होना। जब आपके पास नॉलेज होगा तो ऑफ कोर्स आपके पास ऑटोनॉमी आएगी, ऑटोनॉमी टू प्रैक्टिस नर्सिंग प्रोफेशंस। आप डिसीजन तभी कर सकते हो, यू विल चूज के व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, ठीक है। आपके पास चॉइसेस तब होंगी, आप अपने राइट डिसीजंस को ऑटोनॉमी तभी यूज करेंगे व्हेन यू हैव अ राइट नॉलेज अबाउट द नर्सिंग प्रोफेशंस। जी चिल्ड्रन, यस ओके। सो हमने विजिबिलिटी पे बात कर रहे हैं कि विजिबिलिटी को हम कैसे जो हमें अफेक्ट करती है, हमारी पब्लिकली जो है हमें किस तरीके से हम खुद को इंट्रोड्यूस करवा रहे होते हैं या पेशेंट हम पर जो है वो किस तरीके से जो है उनकी जो नैरो थिंकिंग होती है वो किस तरीके से डेवलप होती है। सो ये सारी बातें हैं जो कि एक प्रोफेशनल नर्सिंग प्रोफेशंस पे इम्पैक्ट करती हैं। So, however, many people do not know about the education required to become a nurse and to maintain the current knowledge or about the great variety of educational
entry point into the nursing at all lead to RN qualifications. ठीक है, जबकि लोगों को पता नहीं होता कि इसके लिए इस डिग्री के लिए क्या नॉलेज होती है, कितने ईयर्स होते हैं, डिमांड होते हैं एक नर्स को बनने के लिए, और वो किस कदर उसके पास 4 साल जब वो पढ़ती है, शी हैज़ अ लॉट ऑफ नॉलेज टू प्रैक्टिस नर्सिंग प्रोफेशनल, वो डिफरेंट रोल प्ले करती है. आपने देखा देयर इज अ वैरायटी ऑफ नर्स रोल, एक्सटेंडेड रोल भी हैं नर्स के, बेसिक रोल भी हैं. अगर एडवांस रोल देखो तो वो क्या करती है, कोलैबोरेट करती है, एडवोकेट करती है, ठीक है, एज ए कंसल्टेंट वर्क करती है. बहुत सारे जो है क्या नाम है उसके वैरायटी रोल्स हैं जिसमें नर्स जो है उसके पास बहुत सारी स्पेशलिटी है जिसमें जाके वो अपने आप को फर्दर स्ट्रेंथन करती है, अपने नॉलेज को इंक्रीज करती है. सो नर्स के पास जो है वैरायटी ऑफ जो इसके पास नर्सिंग में स्कोप है टू प्रैक्टिस नर्सिंग प्रोफेशंस. ठीक है, अगर हम बात करें कि उनको ये पता नहीं था कि ग्रेट वैरायटी ऑफ एजुकेशन एंट्री पॉइंट इनटू द नर्सिंग. ठीक है, टू दैट ऑल लीड टू द आरएन क्वालिफिकेशन. एक आरएन के लिए उसको कितना वो क्वालिफाइड होती है. ठीक है, एफएससी ऑफ कोर्स बेसिक एजुकेशन इज एफएससी, फिर उसको 4 साल जो अपने डिग्री के लिए करती है, 5 इयर्स इवन स्पेंड फॉर टू इम्प्रूव द प्रैक्टिस, अपनी प्रैक्टिस को इम्प्रूव करने के लिए, ताकि वो प्रोफेशनली जो है कॉम्पिटेंटली अपने प्रोफेशंस को परफॉर्म कर सके. उसके लिए इट रिक्वायर्ड अ 5 ईयर टू गेट दैट डिग्री. 5वें साल के बाद आपको जो डिग्री मिलती है. ठीक है, सो यू मस्ट शो आपका जो स्टैंडर्ड जो है टू प्रैक्टिस नर्सिंग प्रोफेशन इज, आपने एथिकल जो इसके पिलर्स हैं, यू मस्ट प्रैक्टिस. क्योंकि आपने देखा कि विदाउट कोई भी प्रोफेशन होता है उसके जो पिलर होते हैं टू प्रैक्टिस प्रोफेशंस, लाइक अगर फायर फाइटर्स हैं दे हैव एथिकल प्रिंसिपल कि क्या करना है उन्हें, क्या रॉन्ग है क्या राइट है. इवन इन द नर्सिंग हैव यू सीन दैट सो मेनी नर्सिंग जो है आपको नर्सिंग एथिक्स किसके आपको इसके पिलर नजर आते हैं, जिसमें ऑटोनॉमी है कि पेशेंट को वंस यू हैव अ नॉलेज अबाउट योर प्रोफेशंस, आपको पता होगा कि कौन से डिसीजंस में आपको कैसे राइट डिसीजन में हेल्प करना है पेशेंट की, ताकि पेशेंट अपनी मर्जी से चूज कर सके. ठीक है, और कॉन्फिडेंशियलिटी है, प्राइवेसी है, ऑटोनॉमी है, जस्टिस है, फिडेलिटी है, नो मेलफिशंस है. से सारे जब हम आपके पास नॉलेज होगा कि आपको प्रोफेशनली जो है कैसे पेशेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से और अपने प्रोफेशनल की जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उन सारी चीज़ों को देखते हुए आपने डिसीजंस करेंगे तो ऑफ कोर्स इट विल क्रिएट अ पॉजिटिव इमेज टुवर्ड द पब्लिक. So consumer generally view nurses are good people who care for others. उनके generally view होते हैं because they don't have a deep idea about the nursing professions. उनकी qualifications के बारे में नहीं पता होता. ठीक है, कि how competent they are, but some are lacking really in from our side because we are not showing our autonomy because of the lack of knowledge maybe. So there's so many factors we will discuss ahead. सो फैक्टर्स में हम बात करेंगे, फैक्टर अफेक्ट विजिबिलिटी ऑफ नर्सिंग. कौन से फैक्टर जो अफेक्ट कर सकते हैं, इंटरनल भी हो सकते हैं और इसके एक्सटर्नल भी हो सकते हैं. सो एक्सटर्नल एंड इंटरनल फैक्टर में हैव इम्पैक्टेड द नर्स वॉइस एंड विजिबिलिटी. उसकी आवाज और विजिबिलिटी पर कैसे इम्पैक्ट करते हैं. द एक्सटर्नल फैक्टर आर कौन कौन से. हिस्टोरिकल रोल ऑफ द नर्स एज अ हैंड मीडियन, नॉट इंडिपेंडेंट रोल. ठीक है, अगर हम पीछे देखा जाए तो बिफोर टाइम जब मॉडर्न एवोल्यूशन से पहले आपने देखा है कि नर्सेस को क्या किया जाता था, हैंड मीडियन, डॉक्टर, सर्वेंट ऑफ द डॉक्टर्स. ठीक है, दे हैव जस्ट रोल टू ओबे द डॉक्टर ऑर्डर. ठीक है, वो नर्स का इंडिपेंडेंस रोल को अंडरस्टैंड नहीं करते थे और उनको नहीं पता था. दैट वाज द एक्सटर्नल फैक्टर. पीपल पब्लिकली कंसीडर दैट द नर्सेस आर हैंड मीडियन. सो hierarchical structure of the healthcare organization has often limited the role of nursing in decision making. ठीक है, अगर हम देखें तो हमारा जो hierarchical जो स्ट्रक्चर है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है, उसमें भी रोल का जो है डिसीजन मेकिंग के अंदर उसका लिमिटेड रोल नजर आएगा. अगर होगा तो शी इज नॉट इंडिपेंडेंट टेक द डिसीजंस. ठीक है, वो नहीं ले सकती. ये वाला भी बहुत सारा hierarchical स्ट्रक्चर भी जो है ये बहुत बड़ा कॉज है टू अफेक्ट ऑन विजिबिलिटी ऑफ नर्स. समझ आ गया? अंडरस्टैंड? हाँ, यस मैम. ओके,
So perceived authority or directive of position has limited independence role of the nurse. हम बात करते हैं तो perceived authority, जिनके पास पावर होती है, अथॉरिटी होती है, डायरेक्टिव ऑफ द फिजिशियन के ऑर्डर जो होते हैं, हैज लिमिटेड इंडिपेंडेंट रोल ऑफ द, उसमें नर्स को क्या है, लिमिट किया जाता है कि वो अपने इंडिपेंडेंट रोल को जो है परफॉर्म नहीं कर सकती है. ये भी एक्सटर्नल फैक्टर में आता है. हॉस्पिटल पॉलिसीज हैज ऑफन लिमिट नर्सिंग एक्शंस. ठीक है, सो ये भी एक फैक्टर है. थ्रेट ऑफ डिसिप्लिनरी और लीगल एक्शन और लॉस ऑफ जॉब माइट लिमिट अ नर्स रोल. ये भी एक बहुत बड़ा जो है लीगल जो है ऑब्लिगेशंस है, जिसमें हमने देख सकते हैं कि डिसिप्लिनरी जो है लीगल एक्शन की वजह से वो कि उनकी जॉब ना लॉस हो जाए, इसलिए नर्स का रोल आपको लिमिटेड नजर आता है. व्हेन ही और शी नीड टू स्पीक आउट, जब उसे बोलने की जरूरत होती है, जब उसको एडवोकेट करने की जरूरत होती है. सो आजकल का आपका दौर पता है, द पीपल आर मोर कंट्रोलिंग, नॉट गिविंग, एंड यू नो आपका जो फ्रीडम है टू स्पीक है ऑलवेज लिमिटेड. कि आप और पीपल आर हैव अ फियर, कि उनको फियर होता है कि वी विल नॉट लॉस द जॉब. ठीक है, सो नर्स मस्ट भी, अगर हम उसको थ्रू एजुकेटिव पॉइंट व्यू से हम हमेशा अपनी बात को हम कह सकते हैं कि वंस वी हैव द वे टू कम्युनिकेट और एक्सप्रेस टू हर थॉट थ्रू द रैशनली, जब हम रैशनली अपनी बात को करना चाहेंगे रैशनली के साथ और थ्रू नॉलेज आएंगे, तो एटलीस्ट वी कैन शो और विजिबिलिटी, हम अपनी विजिबिलिटी जो है पब्लिकली जो है इम्प्रूव कर सकते हैं, ताकि लोग हमारी जो बात को, एक्शंस को जो है वो अप्रिशिएट करेंगे. सो देयर इज सम फैक्टर जो विजिबिलिटी में जो इंटरनल फैक्टर्स है. इंटरनल, हमने एक्सटर्नल फैक्टर की बात की थी कि कौन कौन से इंटरनल फैक्टर्स जो है, लेकिन अब हम बात करेंगे कि उसके इंटरनल फैक्टर कौन कौन से जो उसकी विजिबिलिटी को अफेक्ट कर देते हैं, उस पर जो है नेगेटिव इमेज डालते हैं. द इंटरनल फैक्टर्स आर रोल कंफ्यूजन. वंस शी डिड नॉट अंडरस्टैंड कि मेरी ड्यूटी क्या है, व्हाट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी. ठीक है, उसको अपने रोल का ही नहीं पता कि उसका रोल क्या है, वो कंफ्यूजन है. सो शी विल नॉट प्रोड्यूस हिज ओन विजिबिलिटी. तो रोल कंफ्यूजन इज द बिगेस्ट, यू नो, अगर हमें अपने रोल को ही नहीं पता कि हमने करना क्या है. फॉर एग्जाम्पल, आई एम हियर टुडे टू टीच, लेकिन जब मुझे यही नहीं पता कि मैंने पढ़ाना क्या, तो हु विल कंसीडर मी अ टीचर. ठीक है, वंस आई विल बी प्रिपेयर एंड हैव अ प्रॉपर प्रिपरेशन एंड प्लानिंग, जब मैं अपनी प्लानिंग के साथ आऊंगी, अपने ऑब्जेक्टिव के साथ आऊंगी, आई नीड टू periodically मैं उसको आपके सामने एक्सप्लेन करूंगी, then you will consider that I have a right knowledge and you will appreciate me. ठीक है, एक जनरल एग्जांपल दिया. फॉर एग्जांपल, अगर आप जाते हो, आपने पेपर देने जाते हो और आपने तैयारी नहीं किया, तो who will give you the degree? कोई भी आपको डिग्री नहीं देगा. ठीक है, आप फेल हो जाएंगे. इसी तरीके से जब हम अपने रोल को अंडरस्टैंड नहीं करते, तो ऑलवेज क्रिएट अ कंफ्यूजन एंड दैट विल शो द नेगेटिव विजिबिलिटी ऑफ द नर्सिंग. सो लैक ऑफ प्रोफेशनल कॉन्फिडेंस, यस, बिकॉज वंस यू डोंट हैव न नॉलेज, आपके पास नॉलेज नहीं है, तो आपके पास कॉन्फिडेंस भी नहीं आएगा, यू विल बी कंफ्यूज्ड. ठीक है, सो क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, यू विल ऑलवेज बी लैक ऑफ कॉन्फिडेंस. टिमिडिटी, फियर हो सकता है. टिमिडिटी का मतलब है फियर, कंफ्यूजन, ये भी एक तरह का है. ठीक है, सो हो सकता है मैं ये बात करूंगी तो मेरी बात लीक हो जाए, लेकिन जब आप अपने रैशनल बात करेंगे, प्रॉब्लम के तौर पे पेशेंट को डील करेंगे, या अपने आप के साथ है, आपका इंटरपर्सनल है, पर्सनल है, कुछ भी है, आपने उसको प्रोफेशनली जो है, यू मस्ट नो हाउ टू कम्युनिकेट एंड दैट कम्युनिकेशन नीड द नॉलेज. जब आपके पास नॉलेज होगा, नॉलेज इज पावर एंड स्ट्रेंथ. लाइक फॉर एग्जांपल जो है, अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है तो यू कैन नॉट प्रैक्टिस. ठीक है, इसी तरीके से आपके पास नॉलेज नहीं है तो यू कैन नॉट यू नो परफॉर्म एनी रोल कॉन्फिडेंटली. फियर है, टिमिडिटी है, इनसिक्योरिटी है, सेंस ऑफ इन्फीरियरिटी है. ठीक है, कि हम अपने आप को लो रैंक कर रहे होते हैं कि हमें शायद, मैं जो है, मेरा औहदा जो है वो डॉक्टर से छोटा, इसलिए मैं ये बात नहीं कर सकती, इसलिए मुझे ये बात करनी नहीं चाहिए. ठीक है, दिस लॉस ऑफ प्रोफेशनल प्राइड. ठीक है, क्या है ये, आपकी प्रोफेशनल प्राइड को क्या करती है. सेल्फ स्टीम कैन आल्सो लीड टू अ मोर सीरियस प्रोफेशनल प्रॉब्लम. ये जो आपके अंदर लॉस ऑफ प्रोफेशनल प्राइड नहीं है, आपके अंदर प्राइड होना चाहिए, और प्राइड ऑलवेज ब्रिंग नॉलेज, ऑलवेज ब्रिंग द प्रोफेशनल प्राइड एंड सेल्फ एस्टीम. ठीक है, जब आपके अंदर नॉलेज आएगा, ऑटोनॉमी होगी, तो आप सेल्फ एक्चुअलाइज्ड बन जाओगे. सेल्फ एक्चुअलाइजिंग जब ही अंदर, जब आपने हायरार्की लेवल देखे, तो जो मैस्लो की हायरार्की है वो कहता है कि आपके पास कब आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जब होती है, तो इसका मतलब है आप ऑटोनोमस हो जाते हैं. ऑटोनोमस मीन यू कैन प्रोफेशनली हैव अ पावर टू मेक अ डिसीजंस.
मेरा ख्याल है हम ये जनरेशनल इश्यूज जो हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ये बहुत डिटेल में है, मैं आपके साथ नेक्स्ट में करूंगी। होप आपको आज का टॉपिक समझ में आगे है। Currently, but I will download. ठीक है, this is very interesting. Hope, is it interesting topic? So try to bring all these changes and show your visibility while you're going to the clinical area. Be confident and having a learn from your seniors as well how to solve the problems once whenever you are encounter with the problem. So avoid to over talking and misbehaving to the patients. So if you want to improve your status and image, be confident and have a knowledge and show your self pride that you are a nurse. ठीक है, ये नर्स आपका यूनिफॉर्म जो होता है ये आपकी प्राइड है। ठीक है, टेक एज अ यूनिफॉर्म एज अ प्राइड while you are in the uniform. You always to think that I am on duty and my duty is to care the patient whatever is the consequences will be with me. I'll always be I will take care of my patient. I will take care of my respect. I will take care of this respect of my professions. ठीक है, my uniform. ठीक है, everything you need to take care. So let me have attendance.
say.
Bishra है? सो के टेक केयर ऑफ यू, गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदा आपके साथ हो। और मैंने आपको अटेंडेंस दे दी है, ले ली है आपकी अटेंडेंस। सो आप इसको पढ़िएगा, देखिएगा। आई विल अपलोड दिस लेक्चर्स। ओके, सो गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर। हेलो, ओके वर्दा, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।